Hello friends, my name is Nikhil Kharvi and welcome to my channel जिसका नाम है बाल भारती किड्स। आज हम जिनके बारे में जानेंगे वो व्यक्ति भारत का पहला व्यक्ति है जिसने भारत के लिए एकल ओलंपिक मेडल को जीता था, वो भी सन 1952 में। आज हम देखेंगे किस तरह इस महान व्यक्ति ने कड़ी मेहनत से और कठिनाइयों का सामना कर भारत देश के लिए सर्वप्रथम ओलंपिक मेडल हासिल की। तो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। Today you will be knowing a person who was the first person to win a solo medal in the Olympics for India, and that was in the year 1952. So today we will see how this person managed to win the medal despite poverty, problems, and for sure hard work as well. So if you want to know who this person is, please watch the video till the end. This story is also mentioned for standard 3 kids in the lesson number 7. The lesson name is Kasbah Jadhav. Have you heard about the Olympic Games? Sportsmen from many different countries of the world come together for the Olympic Games. A number of events are held. There are games, athletics events like high jump, long jump, running, gymnastics events, swimming and diving competitions, boxing and wrestling matches, and many other things. The winners are given gold, silver and bronze medals. An Olympic medal is an honor. An Olympic winner is considered to be a world champion. क्या आपने ओलंपिक खेलों के बारे में सुना है? दुनिया के कई अलग अलग देशों के बेहतरीन खिलाड़ियां ओलंपिक खेलों के लिए एक साथ आते हैं। कई खेल का आयोजन होता है। खेल जैसे कि एथलेटिक्स स्पर्धाएं जैसे ऊंची कूद, लंबी कूद, दौड़, जिम्नास्टिक स्पर्धाएं, तैराकी, डाइविंग प्रतियोगिता, मुक्केबाजी और कुश्ती जैसे मैचेस और कई अन्य चीजें खेली जाती है। विजेताओं को स्वर्ण यानी गोल्ड, रजत यानी सिल्वर और कांस्य यानी ब्रॉन्ज पदक दिए जाते हैं। ओलंपिक पदक एक सम्मान है। एक ओलंपिक विजेता को विश्व चैंपियन माना जाता है। Few Indians have won Olympic medals so far. The first person to win a medal for independent India was a wrestler from Maharashtra. His name was Kasbah Jadhav. कुछ भारतीयों ने अब तक ओलंपिक पदक जीते हैं। स्वतंत्र भारत के लिए सर्वप्रथम पदक जीतने वाले पहले व्यक्ति महाराष्ट्र के पहलवान थे। उनका नाम है कसबा जाधव। Kasbah Jadhav was born in a very poor family in a village called Goleshwar in Satara district. But it was a family that loved sport, especially wrestling. His father, Dada Saheb, was himself a wrestler. He had 5 sons. The youngest of them was Kasbah. Dada Saheb himself taught his sons wrestling. They were all very good at it, but the best among them was Kasbah. Kasbah Jadhav का जन्म सातारा जिले के गोलेश्वर नामक एक गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। लेकिन ये एक ऐसा परिवार था जिसे खेल से प्यार था, खासकर कुश्ती में। उनके पिता दादा साहेब खुद एक पहलवान थे। उनके 5 बेटे थे। उनमें सबसे छोटे थे कसबा। दादा साहेब ने खुद अपने बेटों को कुश्ती सिखाई। वे सभी इसमें बहुत अच्छे थे, लेकिन
उन सबसे अच्छे खशबा थे। From an early age, Kashba loved to watch wrestling bouts. His father took him to see the bouts from the time he was just 4 years old. He would sit on his father's shoulders and watch the bouts. At 10, he was the youngest to get into the akhada. Soon, it became clear that he was also the best not only in his own akhada but in the whole area. कम उम्र से ही खशबा कुश्ती मुकाबलों को देखना पसंद करते थे। जब खशबा 4 साल के थे तब से उनके पिता उन्हें मुकाबलों को देखने लेकर जाया करते थे। वे अपने पिता के कंधों पर बैठकर मुकाबलों को देखते थे। 10 साल की उम्र में वे अखाड़े में जाने के लिए सबसे कम उम्र के पहलवान थे। जल्दी ये स्पष्ट हो गया कि वे केवल अपने स्वयं के अखाड़े में ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ थे। Kashba loved other sports too. He was fond of kabaddi, malkhamb, running, swimming and gymnastics. He took part in all of these. He became strong and agile. He loved to discuss sports with his friends. खशबा को अन्य खेल भी बहुत पसंद थे। उन्हें कबड्डी, मलखंब, दौड़, तैराकी और जिम्नास्टिक का शौक था। उन्होंने इन सभी में हिस्सा लिया। वो मजबूत और तेज हो गए थे। अपने दोस्तों के साथ खेल पर चर्चा करना उन्हें बहुत पसंद था। He went to Rajaram College in Kolhapur where wrestling was encouraged. Kashba took part in many wrestling bouts and won them all. In that area, he was the champion. Therefore, he was sent to wrestle at the state level and national level. उन्होंने कोल्हापुर के राजाराम कॉलेज में पढ़ाई की, जहां कुश्ती को प्रोत्साहित किया जाता था। खशबा ने कई कुश्ती मुकाबलों में भाग लिया और उन सभी मुकाबलों को जीता। वो उस क्षेत्र के चैंपियन थे, इसीलिए उन्हें मुकाबलों के लिए राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर कुश्ती के लिए भेजा गया था। Kashba Jadhav became famous at the national level too. He beat the national champion Niranjan Das in 1948. That is why it was decided to send him to the International Olympic Games. Kashba Jadhav राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रसिद्ध हुए। उन्होंने 1948 में उस वक्त के राष्ट्रीय चैंपियन निरंजन दास को हराया। इसीलिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेलों में भेजने का निर्णय लिया गया। When Kashba Jadhav took part in the Olympic Games for the first time, he found that the Indian and international rules were different. At the Olympic Games, the bouts were held on a mat. In spite of these differences, Kashba Jadhav won a 6th place out of 42. जब खशबा जाधव ने पहली बार ओलंपिक में भाग लिया तो उन्होंने पाया कि भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय नियम अलग-अलग होते हैं। ओलंपिक खेलों में मुकाबलों का आयोजन एक चटाई पर किया जाता था। इन मतभेदों के बावजूद खशबा जाधव ने 42 लोगों में से 6ठे स्थान पर जीत हासिल की। The Olympic Games are held every 4 years. In 1952, Kashba wished to take part in the Olympics again, but it was not an easy task. He had to prove his merit again and face the opposition of officials. ओलंपिक खेल हर 4 साल में एक बार आता है। 1952 में खशबा ने फिर से ओलंपिक में भाग लेने की इच्छा जताई। ये कहने के लिए आसान था, लेकिन
ये एक आसान काम बिल्कुल नहीं था। उन्हें फिर से अपनी योग्यता को साबित करना पड़ा और अधिकारियों की उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। Also, in those days, Olympic participants had to spend their own money for traveling to and staying in the place where the games were held. It was very expensive. Kashba did not have that much money and he did not get any money from the government. At last, the principal of Rajaram College gave his own house to get the money. Other people in Kashba's village also helped. इसके अलावा उन दिनों ओलंपिक जहां खेल आयोजित किया जाता था, प्रतियोगिताओं को उन जगहों पर यात्रा करना और रहने के लिए अपना खुद का पैसा खर्च करना पड़ता था। ये बहुत ही महंगा होता था। कस्बा के पास उतने पैसे नहीं थे, ना भारतीय सरकार ने उसे पैसों की मदद की। आखिर में राजाराम कॉलेज के प्रिंसिपल ने अपना घर बेचकर कस्बा को पैसे दिए। फिर भी पैसे कम पड़े, लेकिन गांव के अन्य लोगों ने मिलकर कस्बा को पैसे की मदद की। The 1952 Olympics were held at Helsinki. There, Kasba Jadhav had to face opponents from Russia and the Gulf countries. He won the first 5 bouts quite easily. He won each bout within 5 minutes. 1952 का ओलंपिक फिनलैंड के राजधानी हेलसिंकी में आयोजित किया गया था। वहां कस्बा जाधव को रूस और गल्फ देशों के पहलवानों का सामना करना पड़ा। उन्होंने पहले 5 मुकाबले बड़ी आसानी से जीते। उन्होंने केवल 5 मिनट के अंदर प्रत्येक मुकाबले को जीत लिया। Then he had to face a wrestler from Japan. They were both well matched. The bout lasted for 15 minutes. Kasba lost the match by just 1 point. उसके बाद उन्हें जापान के पहलवान का सामना करना पड़ा। वे दोनों पहलवानों की टक्कर खूब मेल खा रही थी। कस्बा का वो पहला मुकाबला था जो 15 मिनट तक चला। वो मैच कस्बा सिर्फ 1 अंक से हार गए। He was exhausted after the bout, but he was asked to wrestle with a Soviet wrestler immediately. This was against the rules. According to the rules, Kasba should have rested for at least half an hour before the second bout. मुकाबले के बाद वे बहुत ही ज्यादा थक गए थे, लेकिन उन्हें तुरंत एक सोवियत पहलवान के साथ कुश्ती लड़ने के लिए कहा गया। यह नियम के बिल्कुल विरुद्ध था। नियम के अनुसार कस्बा को दूसरे मुकाबले के पहले कम से कम आधे घंटे का आराम मिलना चाहिए था। Kasba lost in the bout with a Soviet wrestler. Still, he had won a bronze medal by finishing 3rd. Kasba उस सोवियत पहलवान से मुकाबला हार गया, फिर भी वे किसी तरह कांस्य पदक जीतने में सफल रहे। When Kasba returned from Helsinki, many people honored him. The people in his village gave him a grand welcome. A procession of 151 bullock carts waited for him in his home village of Goleshwar. The villagers carried their hero to the sound of dhols. जब कस्बा हेलसिंकी से लौटे तो कई लोगों ने उन्हें सम्मानित किया। उनके गांव के लोगों ने उनका बहुत ही भव्य स्वागत किया। उनके गांव गोलेश्वर पहुंचते ही उनका स्वागत करने 151 बैलगाड़ियां को सजा कर रखा गया था। गांव वालों ने अपने हीरो का स्वागत उन्हें ऊंचा उठाकर ढोल नगाड़ों से किया। कस्बा जाधव did not forget those who helped him. After winning the Olympic medal, he played the first bout to raise money, not for himself, but for the principal who had given his house for sending Kasba to Helsinki. The principal got his house
back again. खशबा जाधव उन लोगों को नहीं भूले जिन्होंने उसे मुश्किल समय पर मदद की थी। ओलंपिक में मेडल हासिल करने के बाद पैसे इकट्ठा करने के लिए पहला मुकाबला खेला उन्होंने। खुद के लिए नहीं, बल्कि उस प्रिंसिपल के लिए जिसने अपने घर को बेच दिया था ताकि खशबा हेलसिंकी जा सके। प्रिंसिपल को फिर से अपना घर मिल गया, एक तोहफे के रूप में। खशबा won great honor for his country even when he did not have much help or facilities. Today, sportsmen have many facilities. Shouldn't we all try our best to win great honors for our motherland? खशबा के पास सुविधाएं नहीं थी, ना ही भारतीय सरकार की मदद। फिर भी उनके इरादे स्थिर थे और वही इरादे की वजह से उन्होंने अपने मातृभूमि के लिए बहुत सम्मान हासिल की। आज के खिलाड़ियों के लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं। क्या हम सभी को अपनी मातृभूमि के लिए अधिक सम्मान जीतने की पूरी कोशिश नहीं करनी चाहिए? तो ये थी खशबा जाधव की कहानी, जो हमें सिखाती है कि अगर आपको जीतना है तो आपको तैयारी खुद करनी होगी। भले ही फिर कोई सुविधा आपको मिले या ना मिले, लेकिन कड़ी मेहनत करना जरूरी है। सुविधाओं का इंतजार मत करो। अगर खशबा जाधव भारत सरकार की राह देखते बैठते तो वो कभी भी कोई पदक हासिल नहीं कर पाते, लेकिन सरकार की मदद की उम्मीद उन्होंने कभी की ही नहीं। उन्होंने अपने मातृभूमि के लिए जी जान लगाकर मेहनत की और आखिर में वो मेहनत रंग लाई। जब आप पूरे मन से और पूरे लगन से कोई काम करते हो तो भगवान भी आपको मदद करते हैं। तो वो ऊपर वाला ही था जिन्होंने मदद की रूप में प्रिंसिपल और गांव वालों को खशबा की मदद करने भेजा था। इससे हम ये सीखते हैं कि अगर आप खुद पे विश्वास करो और पूरे मन और लगन से मेहनत करो तो भगवान आपको जरूर मदद करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं निखिल खारवी आपके लिए ऐसे कई सारे वीडियोस बनाता रहूँगा। अगर आपको मुझे कुछ सुझाव देना है या मुझे कुछ कहना है तो आप नीचे कमेंट में लिख के मुझे भेज दीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। फिर मिलेंगे बाल भारती के नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।